Hello viewers, I am Muhammad Abdul Habib. Welcome you all to our channel Habib Sir Classes. In this video, we'll be discussing Unit 4, Chapter 5, Admission of a Partner, Practical Problems. Here is the question, page number 248, question number 12. A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2 respectively. यहाँ पे partners कौन कौन है? A और B. इन लोगों के profit sharing ratios क्या है? 3:2. Their balance sheet as on 31st March 2020 was as follows. ये लोगों की बैलेंस शीट दी हुई है, यहाँ पे कुछ लायबिलिटीज है और कुछ असेट्स है. Then Mr. C was admitted into business on above date for 1/5 profits in the business on following terms. तो पहले से पार्टनर्स कौन कौन है? ए और बी. नया पार्टनर कौन आ रहा? सी. ये बंदे को क्या बोल रहे हैं? 1/5 शेयर देते बोल रहे, मतलब फ्यूचर में जो प्रॉफिट्स आएंगे उसके 5 हिस्से करे तो एक हिस्सा ये बंदे को देते बोल के बोल रहे. So C should bring 60,000 as capital and goodwill of the firm is valued at 40,000. यहाँ पे नया पार्टनर हमेशा अपने साथ क्या क्या लेके आना? कैपिटल और गुडविल. सो वंस अगेन हियर न्यू पार्टनर इज ओनली ब्रिंगिंग टुवर्ड्स कैपिटल. तो नया पार्टनर यहाँ पे सिर्फ कैपिटल के पैसे दे रहा, गुडविल के पैसे नहीं ला रहा, सिर्फ उसको कम्युनिकेट करे के 40,000 गुडविल है. यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन के एसेट्स में गुडविल 10,000 दिया हुआ है. देखिए पहली बार गुडविल एसेट्स में भी दिया हुआ है, नीचे एडजस्टमेंट में भी दिया हुआ है. ये चीज कुछ नहीं सीखने को मिलेंगी. नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी बी डिप्रिशिएटेड बाय 5%. क्रिएट ए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट 5% ऑन डेप्टार्स. बिल्डिंग वैल्यूड एट 40,000. गिव जनरल एंट्रीज एंड ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी. So without preparing general entries, we'll be solving the problem. We'll be preparing ledger accounts and then balance sheet. What are the ledger accounts that we prepare? A revaluation account, cash account, goodwill account, partners capital account, balance sheet. The format for revaluation cash and goodwill is date particulars JF amount rupees, date particulars JF amount rupees. Extreme left DR debit, extreme right CR credit with the respective names. पहले पे revaluation, दूसरे पे cash account, तीसरे पे goodwill account. अगर ऐसा नहीं करना है तो सिंपली फॉर्मेट क्या करेंगे आप? particulars amount. Then partners capital. The format for partners capital is particulars A amount rupees, B amount rupees, C amount rupees. Particulars A amount rupees, B amount rupees, C amount rupees. Towards extreme left DR debit, towards extreme right CR credit, and the name of the account will be partners capital account. Then balance sheet. The heading for new balance sheet is new balance sheet of A, B, and C as on 1st April 2020, and the format will be liabilities amount rupees, assets amount rupees. चलो let us start. तो यहाँ पे कैपिटल और गुडविल का पॉइंट ये कैश अकाउंट गुडविल में देखेंगे. रिवैल्यूएशन से रिलेटेड पॉइंट्स क्या है? प्लांट एंड मशीनरी भी डिप्रिशिएटेड बाय 5%. सो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 50,000 है. 50,000 का 10% क्या होता है? 5,000. So 5% will be half of it, which will be 2,500. So as it is decrease in the value of asset, it will be shown on debit side as to plant and machinery account 50,000 into 500, which works out to be 2,500. So balance sheet में कैसा बताएंगे हम इसको? assets में लिखेंगे पहले. प्लांट एंड मशीनरी 50,000 था, माइनस डेप्रिसिएशन 2,500, 50 माइनस टू 48 माइनस 200, 47,500. देन प्लांट एंड मशीनरी के बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? क्रिएट ए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट 5% ऑन डेप्टार्स. डेप्टार्स किसको बोलते हैं? जिन लोगों से अपने को पैसे आना है. कितने पैसे आना है? 40,000 रुपये आना है. इसमें से 5% डाउट पे रखो बोल के बोल रहे. 40,000 का 10% 4,000 होता, 5% उसका आधा 2,000 होता. So decrease in the value of asset will be shown on debit side of revaluation as to provision for bad debts 2,000. अब हम इसको बैलेंस शीट में कैसा बताएंगे? एसेट्स में लिखेंगे डेप्टार्स 40,000 आने का था, डेप्टार्स 40,000 आने का था, माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2,000. तो कितने आएंगे अब? 38,000 आएंगे. नेक्स्ट, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, बिल्डिंग भी वैल्यूड एट 40,000. तो यहाँ पे बिल्डिंग्स की वैल्यू कितना है? इट इज 30,000. 30,000 को अपन 40,000 करना है. सो इट इज इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ असेट. सो इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ असेट विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन. तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे बाई बिल्डिंग्स 30,000 से 40,000 करना है, मतलब 10,000 रुपये बढ़ जा रहे. तो बैलेंस शीट के एसेट्स में कैसा बताएंगे? बिल्डिंग्स इट वॉज 30,000 प्लस अप्रिसिएशन 10,000 बिकम्स 40,000. नेक्स्ट, सो रिवैल्यूएशन के जितने एडजस्टमेंट्स थे वो खत्म हो गए. नाउ विल बी बैलेंसिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट.
The total on debit side is 2000 plus 2500, 4500, and the total on credit side is 10,000. तो दोनों में कौन सा टोटल ज्यादा है? 10,000 ज्यादा है. So 10,000 will be recorded on debit side, 10,000 will be recorded on credit side. अब 10,000 में से 4,000 निकाल दीजिए, 6,000, 6,000 में से 500 निकाल दिए, 5,500. तो ये जो 5,500 बच रहे हम उसको प्रॉफिट बोलेंगे and will be distributed among A and B in their all profit sharing ratio which is 3:2. तो यहाँ पे लिखेंगे to profit transfer to A capital 5,500 into 3/5, B capital 5,500 into 2/5. 5,500 when divided into 5 shares, the value of each share will be for 1,100. A has 3 shares, so he'll be getting 3,300. B has 2 shares, so he'll be getting 2,200. Coming to cash account, first we'll be writing to balance B by D in cash account because cash it is an asset. All assets have debit balance. और इसका जो अमाउंट है वो क्वेश्चन के एसेट्स में देखेंगे हम. कैश एट बैंक 25,000 है, तो कैश में लिखेंगे टू बैलेंस बी बाई डी 25,000, क्योंकि कैश एट बैंक दिया हुआ है तो बैंक अकाउंट लिखिए. नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस बी बाई डी. इट इज ए लायबिलिटी, ऑल लायबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस. तो हम इसको लायबिलिटीज में देख के लिखेंगे ए कैपिटल 60,000, बी कैपिटल 40,000. सो इट विल बी शोन एज 60,000 फॉर ए, 40,000 फॉर बी. अब कैश अकाउंट में क्या करेंगे हम? नया बंदा जो कैपिटल और गुडविल लाता वो लिखते थे, बट ये प्रॉब्लम है गुडविल वैल्यूड है, मतलब गुडविल के पैसे अभी बिजनेस में नहीं आ रहे, अभी नहीं आएंगे, बाद में आएंगे. तो फिलहाल जो है ना, हम सिर्फ कैपिटल का पैसा आ रहा तो कैपिटल का अमाउंट लिखेंगे. तो कैपिटल के कितने पैसे आ रहे हैं? 60,000. तो कैश अकाउंट का रूल क्या है? पैसा कैपिटल का रूल क्या है? पैसे आ रहे तो डेबिट में लिखना. तो यहाँ पे कैश कितना आ रहा? 60, 60,000. So it becomes 85,000. 85, 85, 85, 85, 85. तो यहाँ पे कैश कितना था अपने पास? पहले से 25,000 था. फिर इसमें नए पार्टनर का कैपिटल कितना आ रहा? 60,000 आ रहा. सो सबसे पहले कैश में लिखेंगे अपन टू बैलेंस बी बाई डी 25,000 टू सी कैपिटल 60,000. सो 60 प्लस 20 80, 80 प्लस 5 85,000. सो द टोटल ऑन डेबिट साइड इज 85,000. क्रेडिट में कुछ भी नहीं है तो क्रेडिट का टोटल जीरो है, तो दोनों तरफ 85 85 लिखेंगे और इसका बैलेंसिंग करेंगे. बाई बैलेंस कैरिड डाउन 85,000, द सेम विल बी ब्रॉट डाउन ऑन अपोजिट साइड एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 85,000. हमेशा यहाँ पे टू गुडविल लिखते थे, इस बार क्योंकि गुडविल वैल्यूड का प्रॉब्लम है तो कैश में गुडविल नहीं आएगा. अब यहाँ से पॉइंट्स का सिंपल टेक्निक क्या अप्लाई होती? सुबह के अकाउंट में शाम का नाम लिखे, शाम के अकाउंट में सुबह का नाम लिखेंगे. दिन के अकाउंट में रात का नाम लिखे, रात के अकाउंट में दिन का नाम लिखेंगे. हम के अकाउंट में तुम का नाम लिखे, तुम के अकाउंट में हम का नाम लिखेंगे. बैंक के अकाउंट में सी कैपिटल का नाम लिखे तो सी कैपिटल में बैंक का नाम लिखेंगे. बाई बैंक 60,000, बाई बैंक 60,000. फिर अब जो गुडविल है उसकी बात करेंगे. तो यहाँ पे टू गुडविल लिखा हुआ रहता था तो हम गुडविल में बाई कैश लिखते थे, बट क्योंकि गुडविल वैल्यूड का प्रॉब्लम है तो हम कैश में टू गुडविल नहीं लिखेंगे, गुडविल में बाई कैश नहीं लिखेंगे. नाउ कमिंग टू गुडविल अकाउंट. तो पहली बार गुडविल 10,000 एसेट्स में दिया हुआ है, तो जो भी एसेट रहता इट विल हैव डेबिट बैलेंस. तो हम क्योंकि गुडविल का अकाउंट बना रहे, जैसा कैश अकाउंट बनाते थे तो कैश में इट इज एन एसेट, ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस करके हमेशा टू बैलेंस बी बाई डी बताते थे. उसी तरह अब गुडविल का अकाउंट बना रहे और गुडविल एसेट्स में दिया हुआ है, इट इज ऑलवेज एन एसेट. तो क्योंकि गुडविल एसेट्स में स्पेसिफाई करा हुआ है ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस, तो उसको हम पहले गुडविल के अकाउंट में डेबिट में लिखेंगे. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 10,000 है. तो इट विल बी शोन हियर एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000. अब नीचे जो बोल रहा गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 40,000, मतलब पहले से गुडविल जो एग्जिस्टिंग गुडविल है वो 10,000 की है, उसको 40,000 पे वैल्यूएशन करना है, मतलब और अपने को 30,000 होना है गुडविल के. तो जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुएगा ए और बी में वो 30,000 डिस्ट्रीब्यूट हुएगा. अगर यहाँ पे अपने को 10,000 नहीं देता था तब हम जो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करते थे वो टोटल 40,000 डिस्ट्रीब्यूट करते थे. बट क्योंकि यहाँ पहले से 10,000 दिए हुए हैं तो गुडविल का जो अमाउंट ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो सिर्फ डिफरेंस अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा जो 30,000 होगा. तो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 3:2. 3 + 2 इट बिकम्स 5. तो 30,000 when divided into 5 shares, the value of each share will be for 6,000. A has 3 shares, so he'll be getting 18,000. B has 2 shares, so he'll be getting 12,000. तो यहाँ पे जो गुडविल है 10,000, ये ऑलरेडी क्वेश्चन के एसेट्स में दिया हुआ है वो बता रहे हम टू बैलेंस बी बाई डी 10,000.
अब गुडविल को क्योंकि 40,000 पे वैल्यूएशन करना है, तो पहले से 10,000 है, तो और कितने रहेंगे डिफरेंस अमाउंट 30,000। तो यहाँ जो वैल्यूएशन होगा वो सिर्फ 30,000 का होगा। टू ए कैपिटल 30,000 इंटू 3/5 18,000, टू बी कैपिटल 30,000 इंटू 2/5 12,000। तो अब पहले से 10,000 थे, अब ये 30,000, तो टोटल गुडविल का वैल्यूएशन कितने पे हो जाता 40,000। सो द टोटल ऑन डेबिट साइड इज 40,000। क्रेडिट में कुछ भी नहीं था, तो क्रेडिट का टोटल 0 है, तो दोनों तरफ टोटल 40 लिख देंगे। इसको बराबर करने के लिए बैलेंसिंग करेंगे, बाई बैलेंस सी बड़ी 40,000, अपोजिट में लाके लिखेंगे टू बैलेंस बी बड़ी 40,000। तो अब इसको नई बैलेंस शीट के एसेट्स में लेके जाके लिखेंगे गुडविल 40,000, क्योंकि गुडविल वैल्यूड में गुडविल एसेट्स में आता। यहाँ पे एसेट्स में लिखा हुआ है, देखिए गुडविल 40,000। तो पहले से जो एसेट्स में दिया हुआ है उसको हम क्या करें, गुडविल अकाउंट में टू बैलेंस बी बाई डी लिखे। जैसे यहाँ पे गुडविल 10,000 दिया हुआ है, उसके बाद नीचे क्या बोला, गुडविल इज टू बी वैल्यूडेड 40 बोला। तो 10,000 को 40,000 करने के लिए क्या करें हम, पहले जो 10,000 थे वो गुडविल अकाउंट में लिख दिए, टू बैलेंस बी बड़ी 10,000। फिर अब उसको जो 40 करना है, तो 10 को 40 करने मतलब अपने पास शॉर्टेज कितने का आ रहा, 30,000 का आ रहा। तो जब ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम सिर्फ 30,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 30,000 के 5 हिस्से करें तो 6,000 का एक हिस्सा आता। 6,000 इंटू 3 18,000, 6,000 इंटू 2 12,000। तब ये टोटल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कितना होता 40। 40 कैसा, 30,000 इन दोनों में जो डिस्ट्रीब्यूट करे, 10,000 जो पहले से थे। तो नई बैलेंस शीट में गुडविल कितना बताएंगे एसेट्स में 40,000। नेक्स्ट, कमिंग टू सेम पॉइंट नाउ, टॉम के अकाउंट में जेरी का नाम लिखे, जेरी के अकाउंट में टॉम का नाम लिखेंगे। गुडविल के अकाउंट में ए और बी का नाम लिखे थे, ए और बी के अकाउंट में गुडविल का नाम लिखेंगे। इधर डेबिट में लिखे थे, इधर क्रेडिट में लिखेंगे। बाई गुडविल 18,000 ए के अकाउंट में, 12,000 बी के अकाउंट में। उसी तरह रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करे थे, तो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट में हम ए और बी का नाम लिखे थे, 3,300 फॉर ए, 2,200 फॉर बी। तो रिवैल्यूएशन के अकाउंट में ए कैपिटल बी कैपिटल का नाम आया, तो ए कैपिटल बी कैपिटल में रिवैल्यूएशन का नाम आएगा। उधर डेबिट में आया, इधर क्रेडिट में आएगा। बाई रिवैल्यूएशन 3,300 फॉर ए, 2,200 फॉर बी। फिर इसके बाद दो चीजें ऐसे रहते हैं जिससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं देता। वो दो चीजें क्या है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। दोनों के दोनों लायबिलिटी में दिया हुआ है। जनरल रिजर्व आपको हमेशा लायबिलिटी में मिलता, प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी में अगर मिला तो वो पुराने प्रॉफिट्स है, असेट्स में अगर मिला तो वो पुराने लॉसेस है। अब यहाँ पे जनरल रिजर्व कितने हैं 20,000। ये रिजर्व कौन मेंटेन करे, ओल्ड पार्टनर्स मेंटेन करे। सो इट विल बी क्लोज बाय ट्रांसफरिंग टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2। 3 + 2 क्या होता 5। तो 20,000 के 5 हिस्से करे तो एक हिस्सा 4,000 का आता। ए के 3 हिस्से है तो ये बंदे को 12,000 मिलेंगे, बी के 2 हिस्से है तो ये बंदे को 8,000 मिलेंगे। तो बाई जनरल रिजर्व 12,000 फॉर ए, 8,000 फॉर बी। उसी तरह लायबिलिटीज में प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया हुआ है, ये पुराने प्रॉफिट्स है। प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया हुआ है 10,000। 10,000 के 5 हिस्से करे तो एक हिस्सा 2,000 का आएगा। तो ए के 3 हिस्से हिल बी गेटिंग 6,000, बी के 2 हिस्से हिल बी गेटिंग 4,000। अभी पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंसिंग करेंगे, तो यहाँ पे लिख रहे हैं आप जनरल रिजर्व बांटे तो लिखे भाई जनरल रिजर्व 12,000 8,000, प्रॉफिट एंड लॉस बांटे तो लिखे भाई प्रॉफिट एंड लॉस 6,000 4,000। अभी इन लोगों का बैलेंसिंग करेंगे, 60 + 10 70, 70 + 10 80, 80 + 10 90, 90 + 6 96 + 3 99 + 300 99,300। डेबिट में कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, तो डेबिट का टोटल 0 है, तो दोनों तरफ हाईएस्ट टोटल लिखेंगे 93,300 93,300। इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे, टू बैलेंस सी बड़ी 93,300, the same will be brought down on opposite side as by balance b बड़ी 93,300। फिर नेक्स्ट सेकंड वाले पार्टनर का टोटल करेंगे, बी का टोटल करेंगे 40, 40 + 10 50, 50 + 8 58 + 2 60 64 66,200। तो क्रेडिट का टोटल 66,200 है, डेबिट का 0 है, तो दोनों तरफ हाईएस्ट टोटल 66,200 लिखेंगे। इसको बराबर करने के लिए टू बैलेंस सी बड़ी 66,200, अपोजिट में बाई बैलेंस बी बड़ी 66,200। सी का 60,000 है, डेबिट में 0 है, तो दोनों तरफ 60 60 लिख के बैलेंसिंग करेंगे, टू बैलेंस सी बड़ी 60, अपोजिट में लिखेंगे बाई बैलेंस बी बड़ी 60। अब हम क्या करेंगे, नई बैलेंस शीट बनाएंगे। तो नई बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या करते हैं हम, पुरानी बैलेंस शीट सामने रखते। सबसे पहले लायबिलिटीज में हम कैपिटल्स लिखेंगे। तो ए के पास कैपिटल वैल्यू क्या है 99,300, बी के पास कैपिटल वैल्यू क्या है 66,300 200, सी के पास क्या है 60,000। तो इन तीनों का कैपिटल्स बताएंगे, ए कैपिटल 99,300, बी कैपिटल 66,200, सी कैपिटल 60,000। अब पुरानी बैलेंस शीट मतलब क्वेश्चन की लायबिलिटीज देखते हुए नई बैलेंस शीट की लायबिलिटीज फिल करेंगे। ट्रेड क्रेडिटर्स 15,000,
बिल्स पेबल 30,000, इन दोनों को हम कुछ भी नहीं करें तो जैसा है वैसा लिखेंगे। ट्रेड क्रेडिटर्स 15,000, बिल्स पेबल 30,000। देन ट्रेड क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल के बाद जनरल रिजर्व 20,000 थे, बांट के खत्म कर दिए। प्रॉफिट एंड लॉस 10,000 थे, बांट के खत्म कर दिए। कैपिटल्स ए और बी ये पुराने वैल्यूज थे, नए वैल्यूज लिख दिए, तो लायबिलिटीज पूरे खत्म हो गए। अब असेट्स में आएंगे, तो गुडविल जो 10,000 था उसको 40 का वैल्यूएशन पे बताना है, तो नई बैलेंस शीट के एसेट्स में हम गुडविल 40,000 बताएंगे। आखिरी में है देखिए गुडविल 40,000 ऑन असेट साइड। देन और क्या है, बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स 30,000 है। सो बिल्डिंग्स 30,000 पे 10,000 बढ़ा के अपन उसको 40,000 करके बता दिए। बिल्डिंग 30,000 प्लस अप्रिसिएशन 10,000, इट बिकम्स 40,000। देन आफ्टर बिल्डिंग वी हैव प्लांट एंड मशीनरी 50,000, तब उसको असेट्स में बताएंगे। प्लांट एंड मशीनरी 50,000 माइनस डिप्रिसिएशन 2,500, 50 माइनस टू 48 माइनस 500, 47,500। एंड फिर प्लांट एंड मशीनरी के बाद अगला नाम क्या है, स्टॉक। स्टॉक 20,000 है, तो अब हम इसको बैलेंस शीट में जो जैसा है वैसा बताएंगे, स्टॉक 20,000। देन आफ्टर स्टॉक वी हैव डेटार्स 40,000, तो डेप्टार्स 40,000 जिसपे 2,000 प्रोविजन मेंटेन करना था, तो डेप्टार्स विल बी शोन एज 38,000। देन आफ्टर डेप्टार्स वी हैव कैश एट बैंक 25,000, ये पुराना वैल्यू था। अब अपने पास कितना पैसा है, 85,000। सो नई बैलेंस शीट के कैश में हम बताएंगे 85,000। तब इन दोनों का टोटल करेंगे, दोनों तरफ टोटल सेम आता, विच इज 2,70,500, 2,70,500। Hope you have understood the topic. See you all in next video. Thank you.